فیصلہ کر سکتے ہیں. ابھی یہ فیصلہ ہمیں 15 اپ اور 15 ڈاؤن ٹرینوں کا ملا ہے. اس میں ماسک لگا کے مسافر آئیں گے, اس میں فاصلہ رکھا جائے گا, اس میں آن لائن ٹکٹنگ ہوگی. اور کل کا دن اس لیے رکھا ہے کہ اگر کوئی ٹکٹیں بچی ہوئی ہیں, ورنہ لوگوں نے پہلے کی آن لائن بکنگ کی ہوئی ہے, اگر کسی کو آن لائن ٹکٹ کی خالی سیٹ ملتی ہے تو وہ کل بک کر سکتا ہے. بغیر بکنگ کے, بغیر ٹکٹ کے کوئی آدمی اسٹیشنز پر نہیں آ سکتا. 7,000 کراچی, ملتان, لاہور, راولپنڈی اور پشاور اور کوئٹہ, 7,000 ہماری نفری ہے پولیس کی, تمام میں ایمرجنسی نافذ کی ہے تاکہ وہ اسٹیشنوں پر اس چیز کو اشور کریں کہ کوئی مسافر کے علاوہ اسٹیشن میں داخل نہ ہو. اور میں لوگوں سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے لیے دعا بھی کریں. اور بڑی مشکل سے غریب کی سواری کی اجازت ملی ہے, 20 تاریخ سے لے کے 31 تاریخ ہم نے نیا ٹائم ٹیبل بھی دیا ہے تاکہ لوگ 1 گھنٹہ پہلے آ جائیں, اپنی ٹرینوں پہ بیٹھ جائیں, سیٹیں ٹھیک جگہ سے ہیں. اور جعفر ایکسپریس کو ہم نے بالکل نئی, چاروں ریک نئے بنائے ہیں. بلوچستان سے کوئٹہ سے جو کل چلے, پرسوں چلے گی, یہ ساری نئی ٹرین بنائی ہے. اور میں جہاں ڈاکٹرز کو اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سلام پیش کرتا ہوں, وہاں ریلوے کے مزدوروں اور افسروں کو بھی پیش کرتا ہوں کہ ریلوے کے مزدوروں نے کوئی چھٹی نہیں کی اور افسروں نے کوئی چھٹی نہیں کی. یہ سب سے بڑا اعلان ہے جو آج کیا جا رہا ہے. اور اس میں کل پشاور جا کر اس کو دیکھوں گا انتظامات. پرسوں جو گرین لائن ہے اس کو میں سی آف کروں گا, پھر لاہور سے کراچی کے لیے کروں گا اور ملتان کے لیے کروں گا تاکہ تمام ٹرینوں پہ ایس او پی لازمی قرار دی جائے. اور اگر کسی بھی شخص میں تھوڑی سی ذمہ داری کا احساس ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ کسی مسافر کو لینے نہیں آئے گا, کسی مسافر کو چھوڑنے نہیں آئے گا. سپریم کورٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں, سپریم کورٹ کو میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. انہوں نے بہت سارا کام آسان کر دیا ہے تاکہ ٹرانسپورٹ کے ذریعے لوگ پہنچ سکیں گے. تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ مشاورت ہو گئی ہے کسی صوبے کے ساتھ, کسی صوبے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. میں چاروں صوبوں کا مشکور ہوں. ایک ٹرین چل رہی ہے, صرف ایک ٹرین جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے. کراچی ٹرینیں جا رہی ہیں, شاہ صاحب سے میں خود بھی بات کر لوں گا. میری کسی صوبے سے کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ چاروں صوبوں کی جنجیر ہے ریلوے. اور مجھے امید ہے کہ ہمیں اسٹیشن کے باہر ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی, ورنہ پولیس بھی اسٹیشنوں کے باہر بھی ہم اپنی لگا سکتے ہیں. ہماری اپنی 7,000 پولیس ہے. شیخ صاحب جو پابندی تھی عمر کے حوالے سے, یہاں پہ تو بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے عمر کے حساب سے. ہمارے ہاں ریلوے میں کوئی پابندی نہیں ہے. بچے, بہنیں, بیٹیاں اور بزرگ کیبن بک کرتے ہیں, وہ اپنے فاصلہ رکھ کے, ہم نے سواریوں کا حساب رکھا ہے اور اس کے تحت ہم اجازت دے رہے ہیں. میں خود اس کو سپروائز کر رہا ہوں. اور کسی ڈویژن سپریڈنٹ کے علاقے میں ٹرین میں ایس او پی کی خلاف ورزی ہوئی تو میں اسی وقت اس ڈویژنل سپریڈنٹ آفیسر کے خلاف ایکشن ہوگا. کوئی رعایت نہیں ہوئی. تمام ڈی این آج 24 گھنٹے ٹریک میں ٹرالی کریں اور تمام اسٹیشنوں کو بالکل جیسا میں نے پہلے ہدایت کی ہے, کل تمام اسٹیشنوں پہ جہاں گاڑیوں نے رکنا ہے وہاں ریہرسل بھی کی جائے گی تاکہ ایس او پی کو صحیح طور پر لگایا جائے. تمام اسٹیشنوں پہ کل ریہرسل ہوگی. پرسوں نئے ٹائم ٹیبل کے تحت یہ 15 آپ پر 15 ٹرینیں 31 تاریخ تک, عید کی واپسی تک چلایا جا رہا ہے. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتری کی, اور میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کریں رات کو. اگر وائرس کے حالات بہتر ہو گئے تو ہم 1 جون کو اور ٹرینوں کا اضافہ کر دیں گے. شیخ صاحب یہ بتائیں تقریباً 2 مہینے سے ٹرین آپریشن بند رہا تو کتنا لاس ہوا ہے آپ کو؟ 5.25 ارب روپیہ پر مہینہ. میں حفیظ شیخ صاحب کا اور خاص طور پر اسد عمر اور جنرل افضل کا, تینوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہماری ٹرین کے فیکٹریوں میں مدد کی. افضل نے, شیخ حفیظ نے اور اسد عمر نے ہماری مزدوروں کی سیلری میں ہماری مدد کی. یہ بتائیے گا کہ جب وزیر اعظم عمران خان نے ٹرانسپورٹ کھولنے کا اعلان کیا تھا, اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور میں اور اس کے بعد راولپنڈی میں آپ کی ایک دبنگ پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. وہی بات ہے کہ صرف غریب کے لیے آپ بولے تھے, اس میں شیخ رشید کا کردار تو ہے, لیکن عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ کون سی ہینڈلز تھی
जिसकी वजह से आज के सबसे एंड पे जाके रेलवे का आज फैसला हुआ है, उसमें भी आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं। इसके साथ ये बता दीजिएगा कि जो रेलवे की जिस तरह पहले जो सवाल हुआ था, उसमें जो रेलवे का जो तमाम तर जो ऑपरेशन है, जितना खसारा है, उस हवाले से भी कोई आपने जो प्लान किया है? कोई हमारे खसारे में फ़र्क नहीं पड़ रहा। 60% पैसेंजर में हमें नुकसान है, लेकिन हम लोगों की सवारी हैं, हम कौमी अदारा हैं, हम आड़त की दुकान नहीं है, हम किसी सूबों के भी मुतहत नहीं हैं। इसके बावजूद सूबों का एहतराम करते हैं। और ख़ास तौर पर मुराद अली शाह साहब से कहूँगा कि हमारे इंतज़ामात को ठीक रखें वो। और हम जो हैं ये मरकज़ की सवारी हैं, प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है 31 तारीख़ तक इन ट्रेनों पे कौम को गुजारा करना पड़ेगा मोहतात तरीके से। 31 तक हालात ठीक रहे तो 142 की 142 ट्रेनें खोल देंगे। फिर मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर 31 तारीख़ तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम हालात ठीक किए तो मैं खुद फैसला कर सकता हूँ, सारी ट्रेनें 1 जून से खोल दूंगा। जिस तरह शेख साहब आपने कहा ये गरीब की सवारी है, तो कोई रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा? हमने आधी सवारी लेके जा रहे हैं, कोई फ्रेट में फ़र्क नहीं पड़ा, इजाफा नहीं किया। इंडिया ने दुगनी कर दी है रेट। देखें इंडिया में कितना रेट बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान में हमने क्योंकि सवारी आधी की है इसलिए इसके रेट में कोई इजाफा नहीं किया। हालात ठीक रहने का पैरामीटर क्या है? यानी आप कह रहे हैं कि सवारियों की ईद के बाद वापसी तक हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व जो आप करेंगे वो किस तरीके से होगा? ताकि लोग अगर हमसे तावन करते हैं, लोग SOP पे अमल करते हैं, लोग जो है हमारे जो अमला है, हमने अमला बढ़ा दिया रेलवे का, उनके साथ वो कोऑपरेशन करते हैं तो फिर तो मसला सब ठीक है। अगर किसी जगह पे SOP की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर मसला गलत है। शेख साहब ये बताएं कि पेट्रोल तकरीबन 40 रुपए तो सस्ता होगा, लेकिन महंगाई है उतनी तेजी से बढ़ गई है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत नाकाम होगी या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश होगी? कोई साजिश नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ, कोई साजिश नहीं हो रही। हुकूमत चल रही है और चलती रहेगी। बल्कि उनसे पूछें जो साजिश के लिए यहाँ आए थे और ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आ गया, और जल्द क्या होता है ECL में भी उनका नाम आ जाएगा। अभी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आया, जल्द ECL में भी आ जाएगा। फिर वो रोएंगे कि कहाँ गए वो दिन। सब पढ़े जाएंगे शेख साहब, ईद के बाद सियासी सूरत-ए-हाल क्या बदल रही है? ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं कह चुका हूँ कि 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा। और ये कहाँ गए वो दिन वाले जो है ना, ये ECL में भी होंगे और अंदर भी होंगे। ये सारे जिन्होंने मछंदरे, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। और मैं पहले कह चुका हूँ कि नैब आर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेनों को चलाने की इजाज़त दे दी गई है। तमाम ट्रेनों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 20 से 30 मई तक ट्रेन चलाई जाएंगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वही बात है कि सिर्फ गरीब के लिए आप बोले थे, इसमें शेख रशीद का किरदार तो है, लेकिन आवाम जानना चाहती है कि वो कौन सी हैंडल्स थी जिसकी वजह से आज के सबसे एंड पे जाके रेलवे का आज फैसला हुआ है, उसमें भी आपकी एफर्ट सबसे ज़्यादा नुमायाँ हैं। इसके साथ ये बता दीजिएगा कि जो रेलवे की जिस तरह पहले जो सवाल हुआ था, उसमें जो रेलवे का जो तमाम तर जो ऑपरेशन है, जितना खसारा है, उस हवाले से भी कोई आपने जो प्लान किया है? कोई हमारे खसारे में फ़र्क नहीं पड़ रहा। 60% पैसेंजर में हमें नुकसान है, लेकिन हम लोगों की सवारी हैं, हम कौमी अदारा हैं, हम आड़त की दुकान नहीं है, हम किसी सूबों के भी मुतहत नहीं हैं। इसके बावजूद सूबों का एहतराम करते हैं। और ख़ास तौर पर मुराद अली शाह साहब से कहूँगा कि हमारे इंतज़ामात को ठीक रखें वो। और हम जो हैं ये मरकज़ की सवारी हैं, प्राइम मिनिस्टर का फ़ैसला है 31 तारीख़ तक इन ट्रेनों पे कौम को गुजारा करना पड़ेगा मोहतात तरीके से। 31 तक हालात ठीक रहे तो 142 की 142 ट्रेनें खोल देंगे। फिर मुझे अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर 31 तारीख़ तक अल्लाह सुब्हाना ताला ने तमाम हालात ठीक किए तो मैं खुद फैसला कर सकता हूँ, सारी ट्रेनें 1 जून से खोल दूंगा। जिस तरह शेख साहब आपने कहा ये गरीब की सवारी है, तो कोई रेट में तो कोई फर्क नहीं पड़ा? हमने आधी सवारी लेके जा रहे हैं, कोई फ्रेट में फ़र्क नहीं पड़ा, इजाफा नहीं किया। इंडिया ने दुगनी कर दी है रेट। देखें इंडिया में कितना रेट बढ़ गया, लेकिन पाकिस्तान में हमने क्योंकि सवारी आधी की है इसलिए इसके रेट में कोई इजाफा नहीं किया। हालात ठीक रहने का पैरामीटर क्या है? यानी आप कह रहे हैं कि सवारियों की ईद के बाद वापसी तक हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्व जो आप करेंगे वो किस तरीके से होगा? ताकि लोग अगर हमसे तावन करते हैं, लोग SOP पे अमल करते हैं, लोग जो है हमारे जो अमला है, हमने अमला बढ़ा दिया रेलवे का, उनके साथ वो कोऑपरेशन करते हैं तो फिर तो मसला सब ठीक है।
अगर किसी जगह पे SOP की खिलाफ वर्जी होती है तो फिर मसला गलत है। शेख साहब ये बताएं कि पेट्रोल तकरीबन 40 रुपए तो सस्ता होगा लेकिन महंगाई है उतनी तेजी से बढ़ गई है, तो क्या समझते हैं कि हुकूमत नाकाम होगी या हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश होगी? कोई साजिश नहीं हो रही हुकूमत के खिलाफ, कोई साजिश नहीं हो रही, हुकूमत चल रही है और चलती रहेगी। बल्कि उनसे पूछें जो साजिश के लिए यहाँ आए थे और ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आ गया और जल्द क्या होता है ECL में भी उनका नाम आ जाएगा। अभी ब्लैक लिस्ट में उनका नाम आया, जल्द ECL में भी आ जाएगा, फिर वो रोएंगे कि कहाँ गए वो दिन। सब पढ़े जाएंगे शेख साहब, ईद के बाद सियासी सूरत-ए-हाल क्या बदल रही है? ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला मैं कह चुका हूँ कि 31 जुलाई से पहले झाड़ू फिर जाएगा और ये कहाँ गए वो दिन वाले जो है ना, ये ECL में भी होंगे और अंदर भी होंगे। ये सारे जिन्होंने मछंदरे जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, और मैं पहले कह चुका हूँ कि नैब आर्डिनेंस में मैं तरमीम होते नहीं देख रहा और मैं उसको सपोर्ट नहीं करूँगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ट्रेनों को चलाने की इजाज़त दे दी गई है। तमाम ट्रेनों में SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 20 से 30 मई तक ट्रेन चलाई जाएंगी।